So a very good evening to all my viewers who are seeing us today. So today again I'm having Dr. Sweta Parekh with me. She is a MD psychiatrist. She did her MBBS from NHL College, VS Hospital, and then MD from BJMC Civil Hospital, Ahmedabad. She is also practicing from last 5 years. She had hospitals, Swasti Spine and Mind Care at Satellite Ahmedabad. So, ma'am, we are very grateful to have you on our page. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Yes, and with that, the post which I've been posting on my Instagram page about bipolar disorder that we are going to talk about today, I think if you don't mind, should I continue with the questions ahead? Yeah. Okay, ma'am. So today, there's a lot of things people have myths about bipolar. Then bipolar is kind of अंदर कुछ आ गया है या कुछ the person is behaving like he's gone crazy. कभी खुश होता है, कभी like बुरा behave करता है, कभी aggressive होता है, कभी दुखी होता है. So I think there needs to be an awareness about what is bipolar. So that my first question should be that आप हमें बता सकते हैं कि bipolar disorder actually होता क्या है? Yes, whatever you said is very correct कि psychiatric problems के लिए awareness नहीं है society में. People need to understand कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें psychiatrist की जरूरत पड़ सकती है. Those are actual disorders rather than लोगों को पागल है लेबल करना. तो बहुत सारी बीमारियां हैं. There are also symptoms which differ from different illnesses. पर वो जनरल पब्लिक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वो लेबल कर देते हैं कि पागल है. पर ऑल दोस symptoms suggest some psychiatric problem which is treatable. Bipolar mood disorder is one of those disorders कि जिसमें mood swings बहुत होते हैं. कभी कभी it is an episodic illness कि एक एपिसोड आया 3-4 महीने रहता है, उसके बाद इंसान वो जिसको भी होता है वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है. दे कैन स्टे नॉर्मल, आपके जैसे मेरे जैसे रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और 6 महीने 10 महीने 1-2 साल के लिए भी एकदम नॉर्मल ही रहते हैं, और उसके बाद दूसरा एपिसोड आता है. अभी एपिसोड्स है वो पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारे एपिसोड्स भी हो सकते हैं, 2-3 एपिसोड्स भी हो सकते हैं. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हर एक में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है. जनरली इट हैपेंस कि अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी विथ एज बढ़ती जाती है. सो इट्स बेटर टू ट्रीट एट एज सो दैट द नेक्स्ट एपिसोड्स आर नॉट दैट सीरियस. इसमें ये होता है कि दोनों तरह के, इट इज अ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. तो मूड के 2 पोल्स है, एक्सट्रीम पोल्स. तो एक है, दूसरा है डिप्रेशन. द is very low, then he is very depressed. बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाना, बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा खुश रहना, बिना वजह खुश रहना, that is mania. Mania is more serious in a way कि फंक्शनिंग बंद हो जाता है, जो काम करते हैं वो बंद हो जाता है, बहुत सारे खर्चे कर देते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो सकती है. खुद के लिए harmful होती ही है, but then also for the society, the people around them. And depression is very serious in a way to lead to suicide. That is the most dreaded complication जो depression में हो सकता है. So that is why दोनों चीजें ऐसी हैं कि डिप्रेस्ड है या फिर मेनिया में है तो हमें ट्रीट करने की वो जरूरत है. अब अभी आपने 2 एक्सट्रीम बताया हमें कि एक डिप्रेशन है, एक मेनिया है. But अगर किसी को है, if someone is suffering from bipolar, or if a person, because according to me, the person cannot identify that he is suffering from bipolar because insight नहीं होगी. But if our family member or our close friend is suffering from bipolar, तो आप हमें बता सकते हो कोई prominent symptoms जिससे हमें आइडिया आ सके कि हाँ इसे हेल्प की जरूरत है. एक अवेयर, हम खुद अवेयर हो सके कि नहीं, he is suffering from something wrong, it might be bipolar, let's get it checked.
सो व्हाट हैपेंस इज कि जनरली डिप्रेशन अगर होता है तो उसमें लोगों को पता होता है, खुद को भी फील होता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, हर एक चीज में बहुत ज्यादा थकान होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम्म। खाने की इच्छा नहीं होती है, दे स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, नींद नहीं आती है, अगर नींद आ भी जाती है तो बहुत सपने आते हैं, बीच में नींद खुल जाती है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ ना कुछ बुरी चीजें दिमाग में चलती रहती है कि दे स्टार्ट परसीविंग थिंग्स नेगेटिवली। तो राइट। ये सारी है कि काम करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा होते हैं छोटी छोटी बातों पे, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जीने का कोई मतलब नहीं है, दे माइट वांट टू डाई, सुसाइडल थॉट्स भी आने सैड लगते हैं। थॉट। तो ये सारी चीजें हैं, तो डिप्रेशन में द पेशेंट देमसेल्व्स वुड नो कि मुझे कुछ ठीक नहीं है, तो ओके। वो बता पाते हैं लोगों को। एंड जनरली डिप्रेशन वाले पेशेंट्स किसी ना किसी को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, कुछ तो इंडिकेशन देते ही है कि दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो उसमें वी जस्ट नीड टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सच पेशेंट्स कि आई हैव हर्ड सो मेनी पेशेंट्स कमिंग टू मी एंड कि किसी को बताया और वो लोग बोलते हैं कि ये तो बस तुम्हारे विचार ही ऐसे, पॉजिटिव हो जाएगा, बट इट इज नॉट सो। इवन इफ दे ट्राई कि वो कुछ पॉजिटिवली सोचे, पर नहीं हो पाता है, बिकॉज इट इज समथिंग बायोलॉजिकल, तो उसमें वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे केयर टेकर्स को या फ्रेंड्स जो भी उनको ज्यादा सेंसिटिव, इसको कुछ प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू गेट हेल्प। ओके। दैट इज व्हाट इज डिप्रेशन। एंड रिगार्डिंग मेनिया, उसमें तो यही है कि पेशेंट बहुत ज्यादा बातें करने लगे, बहुत चीयरफुल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत चीयरफुल से भी उल्टा बहुत गुस्सा करते हैं, मारपीट कर देते हैं, घर वालों से झगड़े करते हैं। तो दे ऑल्सो डैमेज अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, घर में तोड़ फोड़ करना, तो ये सारी चीजें। दे माइट ऑल्सो बिकम वेरी एक्टिव इन देयर वर्क, कि काम करने में बहुत ज्यादा मन लगता है, तो पूरा टाइम काम करते रहते हैं, ओवर टाइम करने लगते हैं, आसपास वाले लोगों की भी मदद करने लगते हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग सो मच मनी कि जरूरत नहीं है, इतने पैसे नहीं है, फिर भी कुछ नई नई चीजें ले आना, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए ले आना, कपड़े ले आना, बिन जरूरी चीजें इकट्ठा करना। They also start giving away money to जो भी लोग आते हैं नहीं जानते हैं, फिर भी उनको पैसे देते हैं। इफ दे हैव गुड रिसोर्स तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर लेते हैं उस टाइम में। तो इन सब चीजों की वजह से लॉट ऑफ लॉसेस टू द फैमिली ऑल्सो। मतलब जो चीजें लॉजिकल नहीं होती है वो कर देते हैं कभी कभार। नहीं होता है, देयर इज नो रीजन फॉर देम टू डू सो, फिर भी कर देते हैं। ओके। Sometimes it also happens कि if they are smoking about 1 or 2 cigarettes a day, तो उसमें से ये सडनली बढ़ जाता है। एक दो दिन में ही आप देखोगे कि वो दिन में 20-25 सिगरेट्स ले रहे हैं। या फिर से स्टार्ट हैविंग अल्कोहल, कि कभी कभी जो पीते हैं कि महीने में एक आध बार ले लिया, इसमें ऐसा होता है कि दे स्टार्ट ड्रिंकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जिन जिन चीजों में आता है उनको अच्छी लगती है, उसमें ज्यादा ही इन्वॉल्व होना चालू कर देते हैं। ओके। बहुत बेसिकली द लेवल इंक्रीजेस सो मच कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको कभी कभी ये होता है कि सोने की जरूरत भी नहीं होती है, थकान महसूस नहीं होती है, कुछ भी काम करने के लिए बोलो वो कर लेंगे, गाने गाते हैं, बहुत beautiful होते हैं, सोशल इनहिबिशन चला जाता है, तो कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरीके से बात करना है, स्टार्ट लूजिंग ऑफ दैट। है, गाने गा लेते हैं। Okay. So, ma'am, as you told about about mania, so there was a question in my mind over here that आपने बोला कि आप सिगरेट कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं या फिर कभी कभी ड्रिंक ज्यादा कर लेते हैं या फिर लोगों से ज्यादा बात करने लगते हैं। सो आई फील दैट व्हेन अ पर्सन इज वेरी बबली और चीयरफुल, मतलब खुश होता है, बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है काइंड ऑफ, तो वो लोग भी ऐसी चीजें डे टू डे लाइफ में करते हैं। So, can you tell us things which can distinguish between being elated, being happy, and being manic? ऐसी कोई difference हो सकता है क्या? Yes. See, we are comparing with the baseline temperament of the person.
तो जिन लोगों में वो उसको हाइपरथाइमिक पर्सनालिटी बोलते हैं कि सम पीपल आर वेरी एक्सट्रोवर्टेड और दे आर वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल, चीयरफुल रहते हैं, तो दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर दोज पीपल, दे हैव बीन सो सिंस देयर चाइल्डहुड. So in them, if they are very happy and they are just doing the routine thing, which is routine for them, we don't label that as mania. But Right. for people who don't do such things on a regular basis, and then they suddenly there is a change in their behavior, तो उस टाइम पे we need to be cautious कि ये कुछ different हो रहा है. This is not something which is in line with their basic nature. Okay. And you said that there is a difference between elation and mania. Yes, elation, as a layman, elation is being very happy, very Right. cheerful. That is, but then in psychiatric terms, I would say that elation is a part of mania. Oh. So there are different kinds of moods, different stages of mood that a person goes through during the phase of mania. तो इनिशियली जब ये शुरू होता है देन द पर्सन फील्स हैप्पी चीयरफुल, वो एक स्टेज होता है. उससे थोड़ा अगर बढ़ के जाए तो वो दैट इज व्हाट वी कॉल यूफोरिया. द पर्सन बिकम्स यूफोरिक, वेरी हैप्पी, Very energetic too. यस, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी, एंड नॉर्मली ऐसा कुछ है नहीं आसपास, फिर भी बहुत ज्यादा खुश है वो. Right. इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू द ऑनगोइंग करंट सिचुएशन. इलेशन में उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट इज लाइक नेम इट एंड आई विल डू इट. तो ग्रैंडियोसिटी वाला फीलिंग आता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत ताकत आ गई है, एंड दे आर वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. Okay. तो इंक्रीज कॉन्फिडेंस विद इंक्रीज्ड उनकी जो एक्टिविटीज है, दैट इज इलेशन. दैट इज अ टाइप ऑफ मूड इन मेनिया. So away agitated elation matlab normally it's a type of mood in mania. So elation is normal also for some people, right? So agar elation situation based hai, koi cheez stimulus hai अच्छा और उसके कारण आया है, then that is okay. But elation में रहना बहुत टाइम तक without any reason, बहुत टाइम के लिए continuously week or so अगर ऐसा रहता है, then that is not a normal elation जो खुशी की वजह से होता है. Right, yes. So this is just not related to the ongoing things in their life. कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद किसी कुछ बुरी चीजें हो रही है, but still they are not much affected by that. तो वो तो खुश रहेंगे ही, no matter what happens around them. और ये continuous होता है. In any situation, it lasts for at least एक वीक तक ऐसा रहेगा अगर, then we call it mania. अगर एक आध दिन रह गया, एक दो दिन के लिए ही है, then we don't call it mania. और उससे ज्यादा अगर ये persist करता है, along with that ये कुछ functional disabilities आती है, काम पे जाना बंद कर देते हैं या घर में लोगों को परेशान करने लगते हैं, तो उनके routine functioning में भी problems आने लगते हैं. Right. That is when we call it as mania. Okay. So there is a huge difference. It means कि बहुत बड़ा difference है elation और mania में. और elation का normal होना और mania का एक part होना, उसमें भी काफी difference लग रहा है अभी. Yes. So with that, अगर हम उसके दूसरे extreme पर जाए जो depression है, so depression जब इंसान को सीवियर डिप्रेशन अलोन होता है कि डिप्रेशन ही है इसको, और इसको बाइपोलर में डिप्रेशन है, बाइपोलर डिप्रेशन है. सो does it sound different, and is it different? Is there some difference between depression and bipolar depression? Yes, this is something related to the treatment that we need to differentiate. Okay. किसी को भी अगर ऐसा हुआ है, if someone is depressed, तो वो खुद ऐसे नहीं जान सकता है कि मुझे ये जो डिप्रेशन है वो है या फिर ये बाइपोलर वाला डिप्रेशन है. खुद को पता नहीं चलेगा. आसपास वाले लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि द पर्सन इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या फिर ये रूटीन डिप्रेशन जो होता है वो है. क्योंकि देयर आर सम वेरी सटल थिंग्स कि जो नोटिस करनी पड़ती है उसके लिए कि दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. Right. दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को पहले मेनिया का एपिसोड एक आध हुआ है और उसके बाद लाइफ में कभी भी डिप्रेशन होता है, तो ये हमेशा बाइपोलर ही रहेगा. Okay. So having depression is not that important to diagnose a bipolar mood disorder. पर एक बार mania. Right. Yes.
अगर मेनिया हुआ है then the person definitely has bipolar mood disorder. डिप्रेशन नहीं भी हुआ है देन वी डू कंसिडर इट कि कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ होगा या फिर फ्यूचर में उनको डिप्रेशन हो सकता है, बट दैट पर्सन डेफिनेटली हैज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. ओके. तो मेनिया या फिर हाइपोमेनिया, आई वुड एक्सप्लेन दैट आल्सो कि क्या होता है हाइपोमेनिया. तो मेनिया और हाइपोमेनिया वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. डिप्रेशन अगर होता है देन इफ इट इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, या एक भी बार अगर मेनिया नहीं हुआ है और डिप्रेशन के मल्टीपल एपिसोड्स हो रहे हैं, तब ये डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको बाइपोलर डिप्रेशन है कि नहीं है. सो व्हाट इज हाइपोमेनिया? फर्स्ट थिंग, हाइपोमेनिया इज समथिंग कि जिसमें मेनिया जैसे ही सिम्टम्स आते हैं पर सिवियरिटी थोड़ी कम होती है. तो उसमें ये नहीं होता है कि नो मैटर व्हाट आप उसको कितना भी समझाओ वो कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे, या फिर उनके फंक्शनिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, घर पे परेशानी होती है, जो सोशल उनका सोशल जो भी बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे. ऐसा नहीं होगा हाइपोमेनिया में. इट इज मोर लाइक द पर्सन, उसका जो बेसलाइन है उससे थोड़ा हाई हुआ है, मूड इज अ बिट एलिवेटेड, ज्यादा टॉकेटिव हो गए हैं, चेयरफुल हो गए हैं, दे फील अ बिट मोर हैप्पी देन द यूजुअल, बट नॉट लाइक मेनिया. मेनिया वाला जो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या इरिटेबल बहुत होते हैं, झगड़े करते हैं, मार देते हैं, वो सब नहीं होता है. दिस इज जस्ट थोड़ा बहुत उनके नॉर्मल मूड से ज्यादा खुश रहना है. दैट इज हाइपोमेनिया, जिसमें कोई डिसेबिलिटीज नहीं आती है, कि फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं होती है. So that is the difference between mania and hypomania. So if someone has had hypomania in the past, और hypomania ऐसा होता है कि थोड़े दिनों के लिए रहता है and then it goes back to the normal. तो उसकी वजह से they don't come for treatment also during that time. कि थोड़े दिनों के लिए रहा है और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, then it can be okay. तो वो डायग्नोस हाइपोमेनिया के स्टेज में जनरली नहीं होता है. And then if the person someday in the future has depression, तो उस टाइम पे ये हिस्ट्री लेना जरूरी है कि उसको पहले कभी ऐसा हुआ है कि मेनिया या हाइपोमेनिया. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डायग्नोस कि ये बाइपोलर डिप्रेशन है कि यस बाइपोलर डिप्रेशन है कि सिर्फ डिप्रेशन है. यस. So if there are no such episodes in the past, if it is the first episode of depression, we generally take it as major depressive disorder and not as bipolar depression. Okay. That was a very good grudge to know how is it a depression or a bipolar depression, and that kind of awareness you need as a family member or a close friend to get a good treatment. So generally the close relatives, they are able to notice कि ये change आया था कभी उनमें. So they history from the close relatives matters in such patients. So अभी जब हमने bipolar, what is bipolar जाना, what are the causes and risk factors, even the symptoms वो जाने, and even we knew about the difference between it. But जब हम treatment के पास जाए, like when we go towards treatment, I had a couple of questions regarding medication, because I know that it can be a psychotic disorder sometimes. Either my viewers are knowing about the difference between neurotic and psychotic, so I'm using these words now. That psychotic disorder हो सकता है, so medications is very much needed. But medications की बात आए ना, तब वापस एक स्टिग्मा आ जाता है हमारे सामने कि डॉक्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल साइकियाट्रिस्ट के पास जाए हम कैसे. अगर हम गए और बाजू वाले को पता चल गया तो हमारा बच्चे का सारा नाम खराब हो जाएगा. और दवाई ली और अगर उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो दिस क्वेश्चंस आर देयर इन अ लेमैन्स माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो द क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज, हर दवाई का अगर कोई साइड इफेक्ट है, कि जैसे कि अगर मैंने आज या फिर इफ आई गिव समवन अ डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट, तो उसकी साइड इफेक्ट है उस पेशेंट को, सो एज अ डॉक्टर विल आई बी टेलिंग द पेशेंट कि इसकी ये साइड इफेक्ट है? Yes, there are certain side effects की जो बहुत severe भी हो सकती है with any medicine that can happen. वो not just the psychiatric medicines, आप किसी भी कोई भी medicine लो, उसके कुछ ना कुछ तो ऐसे side effects हो ही सकते हैं. Does not necessarily mean that the side effects would occur in each and every patient. So rare side effects भी होते हैं, कुछ common भी होते हैं. So we generally talk about the common side effects.
अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स है तो हम पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव्स को बता देते हैं कि ये हो सकता है. द पेशेंट माइट फील दीज सिम्टम्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट देन दे डोंट नीड टू गेट वरिड कि ये कुछ नौजिया हो रहा है या थोड़ी वॉमिटिंग अगर हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहे हैं, एसिडिटी होती है, तो उन सब चीजों को पूछ लेते हैं पहले कि डू दे हैव द टेंडेंसी टुवर्ड्स हैविंग दीज साइड इफेक्ट्स. इफ नॉट वी कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंगली. अगर फिर भी देनी पड़े कि इवन इफ वी नो दैट द पेशेंट माइट गेट दीज साइड इफेक्ट्स, वी समटाइम्स नीड टू प्रिस्क्राइब दो. तो उनको बता सकते हैं कि ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स है इस मेडिसिन की वजह से, सो दैट व्हेनेवर इट हैपेंस दे डोंट गेट पैनिक्ड. Yes, and as a patient, that patient has a right to ask the doctor कि yes, doctor इसकी कोई side effects है तो हमें बता दो. Of course they have the right to ask. They do ask a lot of questions and obviously they would want to know कि वो कुछ medicines ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, क्यों ले रहे हैं. तो हम बता भी देते हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट्स हो सकती है. There are a lot of serious side effects also with some medicines. पर अगर देखा जाए कि रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि अगर बेनिफिट ज्यादा है रिस्क कम है, देन वी नीड टू प्रिस्क्राइब दैट. और उनको वो पहले से बता के करते हैं कि ये देयर इज अ रिस्क कि आपको ये साइड इफेक्ट हो सकती है. इफ यू गेट एनी ऑफ दिस साइड इफेक्ट्स यू आर सपोज टू कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, या फिर इस मेडिसिन की वजह से ये साइड इफेक्ट्स है तो अगर होती है तो उसी दिन आप मेडिसिन बंद कर दो. Okay. So that they don't have any life-threatening side effects. ऐसा कुछ नहीं हो इसके लिए पहले से बता देते हैं. Most of the medicines that we prescribe are generally safe. ऐसा होता नहीं है, पर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जिसमें कुछ साइड इफेक्ट्स किसी को आ सकते हैं. Okay. So we need to tell them beforehand about that. So if we go ahead with the side effect, तो बोला जाता है कि मेडिकेशन से बहुत ड्राउजीनेस होता है, बहुत नॉशियाटिक फील होता है. कभी कभी लोगों को लगता है कि वो बहुत एडिक्टिव हो गई है. तो द पेरेंट डोंट अलाउ द चाइल्ड कि डोंट टेक, डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने आप ठीक हो जाएगा. अपने आप ठीक नहीं होता. लेकिन so what would you comment on that thing about drowsiness, addiction and nauseatic feelings? Like every medicine has the same kind of no, there are very few medicines के जिससे ये साइड इफेक्ट्स आती है और बहुत कम लोगों में आती है. सो द बिगेस्ट स्टिग्मा विद साइकेट्रिक मेडिसिन इज कि ये लेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी. तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसमें रिपीटेड एपिसोड्स आते रहते हैं. तो इसकी वजह से लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ती है. दिस इज समथिंग कि जो बायोलॉजिकल है, आपके ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये आपको बीमारी हुई है. तो वो जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए यू विल नीड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली. तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन की आदत लग गई है. जस्ट लाइक अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स की, अगर आपको हाइपरटेंशन है तब बीपी की गोलियां तो लाइफ टाइम लेते ही हो, उसमें क्वेश्चन नहीं करते तो आपका बीपी बढ़ जाता है. तो उसमें नहीं है कि आपको मेडिसिन की आदत लग गई है इसलिए छोड़ दी तो बढ़ गया बीपी. The same thing goes with this कि इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो वो केमिकल इम्बैलेंस जो ब्रेन में है वो वापस हो जाएगा. So we are just balancing those chemicals with the medicines. जिस तरीके से बीपी या डायबिटीज को दवाई से हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से ये सिम्टम्स को भी हम मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं. अगर बीच में दवाई बंद कर दी देन देयर इज अ हाई चांस कि आपको वो एपिसोड फिर से आए और सिवियरिटी भी ज्यादा आए. राइट. तो दैट इज व्हाई वी रिकमेंड कि ये मेडिसिन लाइफ टाइम चालू रखनी चाहिए अगर आपको मैनिक एपिसोड्स आए हैं कभी तो. आपने जो ये एग्जांपल दिया अबाउट द थायराइड एंड अबाउट हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है और जो मेंटल illness की मेडिसिन के कंपेयर किया, that was a very good awareness point, that when you are taking physical disorders medicine, people don't question about it कि कुछ होगा कि नहीं होगा, but mental disorder का आता है तो क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार ये पहले तो बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे बेटे को ये चीज है और अभी है तो लाइफ टाइम क्यों लेनी पड़ रही है. That was a very good point. Yes. And going ahead, you were just saying something, I think. Yes, about I was talking about the side effects कि sedation आना. तो there are a lot of medicines के जो sedatives ही है, जो sedation के लिए ही देते हैं क्योंकि patients को नींद नहीं आ रही है या they are not able to calm down, बहुत ज़्यादा they are hyperactive. तो उनको calm down करने के लिए temporary basis पे वो medicines देना जरूरी है.
इफ दे आर नॉट प्रिस्क्राइब दोज मेडिसिन तो बहुत सारा नुकसान कर देंगे, आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे. हाउ आर द रिलेटिव्स गोइंग टू टेक केयर इफ द पेशेंट्स कीप ऑन ब्रेकिंग थिंग्स एट होम और जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम होम, कहीं पे भी सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगेंगे. तो वो सारी चीजें रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है घर पे मैनेज करने के लिए. तो इन सच पेशेंट्स sedatives need to be given कि वो थोड़े काम डाउन हो जाए. इनिशियल फेजेस में sedatives देते हैं. वंस तो जो केमिकल इम्बैलेंस है वो ठीक होने लगता है तो sedatives बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हुई है, द सिम्टम्स विच आर सजेस्टिव ऑफ मेनिया और डिप्रेशन, जो सिम्टम्स वो आए हैं तो वो सबसाइड होने लगेंगे. तो उसके बाद sedatives देने की जरूरत नहीं होती है. So for the first few weeks they have to be prescribed sedatives. और sedatives is a group of drugs जो हर पेशेंट में नहीं देते हैं, और दूसरी जो मेडिसिन देते हैं उसमें sedation नहीं होता है. So we don't need to mix up those things कि कोई भी दवाई दो तो sedation ही होगा. तो ये सारी सोने के लिए दवाइयाँ नहीं होती है. They are medicines to treat the basic problem which the person has. People need to make this clear that हर चीज में sedation नहीं होता और हर दवाई sedatives नहीं होती. So this if so they are make not clear. sedatives and they are not addictive medicines. तो ये दोनों चीजें जो normally most of my patients who come to me they have this question in mind कि ये दवाइयाँ हमें लाइफ टाइम तो नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी और नींद तो नहीं आएगी. ये चीजें हर एक पेशेंट पूछता है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक में ये नोशन है कि ऐसा ही होता है साइकेट्रिक मेडिसिन. अगर हम इससे इफ वी चेंज द एज ग्रुप, हम बच्चों पे आए तो कभी कभी बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन पाया जाता है, बच्चों में आजकल सिजोफ्रेनिया पाया जाता है. बट अगर हम सिर्फ बाइपोलर की बात करें तो डिप्रेशन का एक पार्ट पाया जाता है. तो यू नो कि बच्चों को भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है कि आप अपने बच्चे को ये दवाइयाँ दीजिए. सो इट वाज अ मिथ आई थिंक. सो आई डोंट नो, यू नीड टू ब्रेक इट दैट बच्चों को साइकेट्रिक मेडिकेशन देने से उनके फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन में फर्क आता है, चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर में, उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट खराब होती है. देन व्हाट वुड यू से ऑन इट? इट डजंट हैपन सो. Okay. There are lots of medicines जो which are contraindicated in children and adolescents. पर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी है जो बच्चों में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विच आर वेरी सेफ इन देम, क्योंकि उन लोगों को भी जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट करना तो जरूरी ही है. वी कांट जस्ट लेट देम बी द वे दे आर कि कुछ प्रॉब्लम है स्टिल वी डोंट ट्रीट दैट. तो ऐसी मेडिसिन है कि जो बच्चों में बहुत सेफ है एंड दे कैन बी इजीली गिवन टू देम. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, डजंट कॉज एनी चेंजेस इन देयर ब्रेन. ऑब्वियसली द पॉजिटिव चेंजेस वुड अकर कि जो प्रॉब्लम्स है वो तो ट्रीट करने ही है, बट देन देयर वोंट बी एनी कॉग्निशन में प्रॉब्लम हो जाए या उनके ग्रोथ में डिले होने लगे या ग्रोथ में कहीं पे रुकावट आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके. ऑल्सो अबाउट द डिप्रेशन थिंग कि बच्चों में जो डिप्रेशन होता है so there is also a high chance of suicidal risk. Suicidal risk is high even in children. So we need to take care of such patients कि अगर उनको ignore किया जाए and if they commit suicide then it would be our fault that we did not take care of them. So it is everyone's moral responsibility कि अगर बच्चे कुछ complain करते हैं then they need to be taken seriously about such things. So जब हमने एडिक्टिव मेडिसिन की भी बात की, हमने सेडेटिव्स की भी बात की, बट तब एक टाइम आता है नॉट इन बाइपोलर बट कोई और डिसऑर्डर में, या फिर बाइपोलर में आपने बोला कि एक ब्रेक देते हैं कि हमें अभी मेडिसिन नहीं लेनी है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द चेंजेस इन द विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ द मेडिकेशन? कि छोड़ने की बात आ रही है तो सारे लोग आसानी से छोड़ पाएंगे कि काफी लोग नहीं भी छोड़ पाएंगे, काफी लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आएगी छोड़ने में? What would you speak on the term of withdrawal of the medications? Okay. First thing is कि if you're talking about bipolar mood disorder, bipolar mood disorder is something कि जो episodic होता है. True. There are episodes of depression and mania और inter-episodic period में they are very much normal. तो उस टाइम पे अगर medicines छोड़ दे तो they might not feel anything. एक बार वो एपिसोड ट्रीट हो जाता है उसके बाद वो दवाइयाँ छोड़ देंगे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स और सो, तो विड्रॉल नहीं आता है उसमें. ऑल्सो there is this the severity of the next episode or the frequency of the episodes might increase अगर दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो. But then that does not always happen. So for the first few episodes, अगर 2 या 3 episodes तक, अगर if it is the first episode, we generally prescribe medicines for 2 years. उसके बाद अगर repeated episodes आ रहे हैं तो फिर वो लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की जरूरत होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एपिसोड्स इतने सीवियर नहीं होते हैं, देन वी जनरली प्रिस्क्राइब कि ड्यूरिंग द एपिसोड्स ये ट्रीटमेंट जरूरी है, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद भी कर देते हैं एंड व्हेनेवर द पर्सन हैज द नेक्स्ट एपिसोड वी रीस्टार्ट ट्रीटमेंट. Okay. So that can also be done. There are different types of bipolar disorders, तो based on that also we can treat the patients की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है. Okay. There is also the seasonal variations इन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. कुछ लोगों को सीजनल पैटर्न होती है कि सर्दी के टाइम पे डिप्रेशन होता है, गर्मी के टाइम पे मेनिया होता है. तो वी नो कि इस टाइम पे ये एपिसोड होने वाला है. वी कैन प्रेडिक्ट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हर एक सीजन में किस तरीके के एपिसोड्स आते हैं. Right. तो बेस्ड ऑन दैट द ट्रीटमेंट कैन गो ऑन. इन मोस्ट ऑफ द अदर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये है कि विड्रॉल जनरली इट इज नॉट विड्रॉल, बट देन जस्ट एज आई सेड कि आप अगर कोई मेडिसिन बंद कर देते हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज है, इफ यू स्टॉप टेकिंग इंसुलिन तो आपको शूट अप होगा आपका ब्लड शुगर. Right. द सेम थिंग वुड हैपन विद दिस कि इसमें अगर आपने डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद कर दी सडनली, देन देयर इज अ चांस कि आपको सिम्टम्स फिर से होने लगेंगे ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम. फॉर द फर्स्ट 15-20 days यू माइट फील दैट डिफरेंस, पर 15-20 दिन के बाद आपको एनर्जी कम फील होने लगेगी, थकान महसूस होने लगेगी, शायद थोड़ी नींद कम आने लगे, मूड आपका लो होने लगे. Yes, so all those things start happening gradually after stopping the medicine. Sedation में ऐसा होता है कि sedatives जो देते हैं वो अगर abruptly बंद कर देते हैं, then they might also have difficulty with their sleep. Right. नींद कम आती है या फिर एंजाइटी थोड़ी रहने लगती है. दैट कैन हैपन इफ यू हैव बीन टेकिंग सेडेटिव्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Okay. एक आध महीने अगर ली है उसके बाद बंद कर देते हैं, देन देयर वोंट बी एनी विड्रॉल. बट देन इफ यू आर यूजिंग सेडेटिव्स फॉर से इयर्स टुगेदर और सडनली बंद हो जाती है तो कुछ विड्रॉल आ सकता है, बट नॉट विद एनी अदर मेडिसिन. अदर देन द सेडेटिव्स देयर आर नो अदर मेडिसिन कि जिसमें विड्रॉल आता है. Okay. So अगर हम पर्टिकुलरली बाइपोलर की ट्रीटमेंट की बात करें तो एज अ साइकियाट्रिस्ट आप कौन सी काइंड ऑफ मेडिसिन या फिर आप कैसे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करना चाहोगे एज अ साइकियाट्रिस्ट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर? Yes, so bipolar disorder is something कि जिसमें हम मूड स्टेबिलाइजर देते हैं. इवन इफ द पर्सन हैज डिप्रेशन, अगर एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे तो वो ठीक नहीं होता है. दे आर नॉट दैट इफेक्टिव इन बाइपोलर डिप्रेशन क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं मूड में. सो वी नीड टू स्टेबिलाइज दोस फ्लक्चुएशंस. सो देयर इज दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन, उसको मूड स्टेबिलाइजर्स बोलते हैं. तो मूड स्टेबिलाइजर्स देते हैं कि जिसकी वजह से मूड बेसलाइन से ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है. इट स्टेज इन द नॉर्मल, जो बेसलाइन होती है वो रहता है. तो इट इज जस्ट टू स्टेबिलाइज देम. So that is how the treatment differs between bipolar depression and unipolar depression. Okay. अगर unipolar depression है तो antidepressants देने पड़ते हैं, bipolar depression है तो mood stabilizer से ठीक हो जाएंगे, and they won't even respond to antidepressants. Okay. It will be like that medicine is going inside but no response at all. Yes, because the pathology is different in both the disorders. Sure. So अगर एक बाइपोलर का पेशेंट है, देन व्हाट थिंग्स अ फैमिली शुड हैव इन माइंड कि इसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, बिकॉज दैट इज द थिंग विद पीपल मिस, दैट कि हमारा बेटा है, हम उसको हॉस्पिटल में क्यों डाले, खाली वो सबके साथ दूर हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा और कंडीशन खराब हो जाएगी. ये तो हमारे घर में हमारे आंखों के सामने रहेगा, वी कैन हैंडल. बट कभी कभी ये हैंडलिंग के चक्कर में पीपल मिसगाइड दिस इंफॉर्मेशन और लेट हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन करने में और चीजें बिगड़ जाती है.
So what are Right. the signals you can tell us that which is needed for hospitalization? इन केस ऑफ डिप्रेशन अगर सुसाइडल रिस्क हाई है तो फिर एडमिट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन देंगे, मेडिसिन की इफेक्ट आने में इट वुड टेक एटलीस्ट 15-20 डेज। Okay. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कुछ घर पे इफ दे टेक सम सुसाइडल स्टेप्स तो फिर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो इट्स बेटर कि उस टाइम पे उनको ऑब्जर्वेशन में रखें। सो दे कैन बी मेंटेन्ड एट द हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है उनका। बट देन इफ दे आर एबल टू डू सो इवन एट होम, कि घर पे पता है कि कोई एक दो लोग साथ में रहते ही है, 24 आवर्स वो साथ में रहने वाले हैं एंड दे वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, तो घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकती है। बट स्पेसिफिकली फॉर सुसाइडल पेशेंट्स दे नीड टू बी एडमिटेड। इट इज एन इमरजेंसी, ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें वी नीड टू वर्क इमीडिएटली। कुछ sometimes they also talk about attempting suicide, they also have ideas कि किस तरीके से suicide attempt करना है, so everything is planned in their head sometimes. तो उस टाइम पे वी कांट रिस्क कि उनको घर ले जाओ एंड इफ यू विल बी एबल टू टेक केयर और नॉट। इट्स बेटर कि उस टाइम पे उनको हॉस्पिटलाइज कर दे। देयर इज ऑल्सो दिस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी बोलते हैं। तो ECTs they are very much helpful in suicide. तो सुसाइडल पेशेंट्स है तो उनको ECTs अगर देते हैं तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। मेडिसिन वुड टेक सम टाइम कि 10-12 दिन 15 दिन जितना होगा कि उनका सुसाइडल रिस्क थोड़ा कम करने में। अगर ECTs देते हैं, ECTs कैन बी गिवन ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो वो 2 या 3 ECTs के बाद सुसाइडल थॉट्स कम हो जाते हैं। Right. So that is why we need to hospitalize them कि और therapies भी हम use कर सकते हैं उनके साथ। In case of mania, sorry, you were asking something? No, I was like, in case of violency, hospitalization is needed. Yes, so even if that is what happens in mania generally, कि वो घर पे handle नहीं कर पाते हैं, relatives are not able to take care of the patient क्योंकि वो घर पे रहते ही नहीं है, कहीं पे भी चले जाते हैं, मार देते हैं। So they become very much violent and aggressive even towards the relatives and neighbors, और उन सब लोगों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Okay. तो घर पे वो नहीं मैनेज हो सकते, तो बेटर कि हॉस्पिटलाइज कर दे उस टाइम पे। दे कैन बी हेल्ड मैन्युअली भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको कंटिन्यूअसली मेडिसिन दे के उनको जो अग्रेशन है वो कम कर सकते हैं। True. उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है then we can also give ECTs in them. Mania में भी ECTs are very effective, about 4 or 5 ECTs and the patient gets completely better. Generally 6 ECTs के बाद तो completely symptoms चले जाते हैं। That happens with ECTs. तो उसके लिए so even in depression or in mania we can admit them and give them ECTs. Right. जब आपने ECT की बात निकाली है, then I would like to bring this to notice that ECT, I have been personally seeing how the ECT is given, but अगर कोई आप layman को पूछोगे, normal person को पूछिए कि ECT होता क्या है, then they will definitely tell you it's a shock treatment, brain में shocks दिए जाते हैं. And before I saw it, I was too believing the same thing. और कभी कभी ये भी चीज निकाल दिया कि ECTs can be fatal, you know, because the thing is it is given in the brain, the currents are given in the brain, so it is, we know that is good for the balancing the neurotransmitters, the chemical imbalance, but what according to you, how would you make it good, like, you know, how would you bring awareness into ECTs concept? ECTs people have seen, टीवी में देखते हैं या मीडिया में कहीं पे वो शॉक थेरेपी वाला पिक्चर भी बहुत सारा कहीं ना कहीं देखते हैं। तो वो एक मिथ है कि ECTs में शॉक देते हैं, पेशेंट को परेशानी होती है, जस्ट लाइक यू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, वैसा ही होता होगा इसमें। तो ऐसा नहीं है। दिस इज गिवन अंडर एनेस्थेसिया फर्स्ट थिंग। तो पेशेंट को फील नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और एक माइनर सीजर आता है, उस तरीके से इसमें रिस्पॉन्स आता है। अगर एनेस्थेसिया दे के करते हो तो पेशेंट को बिल्कुल नहीं ख्याल आता है कि क्या हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो देन यू विल सी दैट द पेशेंट जस्ट हैज अ सीजर, जो थोड़ा सा मूवमेंट होता है, राइट, थोड़ा बहुत लिम्स में मूवमेंट होता है, तो उससे पता चलता है कि वो
there has been some kind of an electric shock transmitted to. और दूसरा ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं द इंटेंसिटी ऑफ दैट इज सो लो कि कुछ पता भी नहीं चलता है एंड इट इज सो माइनर कि और कोई ज्यादा डैमेज नहीं हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि इसमें फेटल है या और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. द ओनली कॉम्प्लिकेशंस कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर किसी को होते हैं तो वो रिस्क रहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट देन दैट ऑब्वियसली वी वुड नो कि इनको ECTs दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. इफ इट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो उन पेशेंट्स में ECT देते ही नहीं है. बट देन इफ no such medical contraindications, then it is very safe, can be given in any patient of bipolar mood disorder जो घर पे control नहीं कर सकते हैं, and they are very effective. And over here, I think that this is the thing which a patient's relative or close friend needs to be aware that अगर ECT की बात हो रही है तो उसकी physical abnormalities और physical conditions के बारे में डॉक्टर को सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि हर चीज के बारे में अवेयर करना. Yes. Right. So generally before administering ECT, we have this consent form at all the places. So we have mentioned all these things कि patient को कोई और medical problems है कि नहीं. We have mentioned it in detail कि क्या क्या होता है, how is the procedure, that is also explained. Right. So they don't have any doubts कि कोई problems अगर ECT के time पे होते हैं, then we know कि ऐसे there is a risk कि उनको ये हो सकता है. Right. So अगर हमने जैसे बात की कभी कभी ऑन ट्रीटमेंट भी इंसान को घर पे एपिसोड्स आ सकते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन बट द एपिसोड केम एंड एट दैट टाइम एज अ फैमिली मेंबर एज अ क्लोज फ्रेंड what should be the measures that a person should take to handle the patient. मतलब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया है बट वो बहुत ज्यादा साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसके अंदर कि बहुत ज्यादा बोल रहा है या टॉकेटिव हो गया तो इरिटेट कर रहा है या फिर डिप्रेस हो गया डिप्रेशन का एपिसोड है तो किसी से बात नहीं कर रहा है एकदम स्टूपरस हो गया. So what, according to a psychiatrist, like according to you, what kind of measures a family member should take? In case of depression, they should try talking to the patient कि उनको क्या-क्या thoughts आ रहे हैं, किस तरीके से how they are feeling. They should discuss more about their feelings and emotions so that the person would feel a bit better that I at least have support. Okay. So just being supportive of that, being understanding of what they are going through, that would help in depression. Mm-hmm. And if they have suicidal thoughts, we need to tell them कि we are there with you and we would try to make things better for you, so don't worry. कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं. There are ways to deal with that, and they can be the best judge कि उस टाइम पे इतनी hopelessness आ जाती है, the patient feels so helpless and hopeless कि आगे कुछ नहीं हो सकता है. तो उस टाइम पे उनको मोटिवेट करना जरूरी होता है कि we can get psychiatric help and you'll start feeling better. तो उस टाइम पे रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को दे हैव टू प्ले दिस रोल कि उनको लेके साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है. अगर पेशेंट मना करे तो भी दे हैव टू परस्यू इट कि ये ट्रीटमेंट लेना जरूरी है एंड दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर. Okay. What about mania? In case of mania, इट इज डिफिकल्ट टू से कि किस तरीके से मैनेज करना है. बहुत वायलेंट हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकली भी उनको रिस्ट्रेन करना पड़ता है कि घर से बाहर जाने के लिए आप मना करो उनको, या इस तरीके से मेडिसिन दे सकते हैं. इंजेक्टेबल्स भी घर पे दे सकते हैं कि जिससे इमीडिएट इफेक्ट आए, वो थोड़े काम डाउन हो जाए. Okay. एंड मेनिया में मेडिसिन भी दे आर वेरी इफेक्टिव इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. डिप्रेशन वुड टेक सम टाइम कि 15 दिन जितना लगेगा थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आने में. जनरली इन मेनिया विद इन अ वीक और सो, इन 10 days द पर्सन वुड स्टार्ट फीलिंग बेटर और उनकी जो बेसिकली साइकोमोटर एक्टिविटी है वो तो रिड्यूस हो जाती है. तो द शॉर्ट पीरियड ऑफ अबाउट अ वीक और सो दैट इज डिफिकल्ट टू मैनेज. पर उस टाइम पे वी जस्ट नीड टू टेक केयर कि वो घर से बाहर निकल के कहीं नुकसान नहीं करते. बाकी तो घर पे रह सकते हैं, दे कैन बी मैनेज्ड वेल. डू नॉट गेट मच इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद देम बिकॉज पॉइंटलेस कि वो जो बोल रहे हैं जस्ट गो अलोंग विद व्हाटएवर दे से. उनको ज्यादा यू जस्ट नीड टू कीप देम एट होम एंड कंट्रोल देम. बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं. rather than the best thing would be to give them proper treatment और कुछ नहीं करना है. So, Dr. Sweta, it was my last question, and it was a great interview talking to you about bipolar. You made us a lot of aware with your with the information you gave us, with the knowledge and ideas of yours.
So thank you so much, Dr. Sweta, for coming on my page first of all and telling us a lot of things about bipolar, for breaking so many myths, misconceptions about it. Thank you for giving me a chance to talk on bipolar and talking about psychiatry in general. It was Yes. nice talking to you. Yes, and I hope for in any future, if we can be in touch with for any further sessions, we will be really grateful for that. Okay, definitely. I Yeah. would love to come back. Thank you so much, Dr. Sweta. I'll just end the live now. Thank you so much. Okay, Yeah. bye.